Good afternoon, class. Sorry for the late start. I was a bit busy in something else. So guys, अभी तक हमने देखा था कि 4 टाइप के ड्राइवर्स होते हैं. Okay. Now we will see how to program use those drivers in our program. Okay. So loading a database driver. देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले तो you need to get the driver. आपको ड्राइवर चाहिए रहेगा फ्रॉम पर्टिकुलर वेंडर जो आप यूज करने जा रहे हैं. ओके. सो जो आप यूज करने जा रहे हैं उस वेंडर से आपको क्या चाहिए रहेगा? ड्राइवर. वन थिंग. सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दैट ड्राइवर इन योर क्लास पाथ. ओके. और इन दी लाइब्रेरी ऑफ आईडी. ठीक है भैया, आपके प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा. ओके. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट यू हैव टू लोड द ड्राइवर. These drivers are provided by the database vendor. We are only focusing on a single driver जो कि है MySQL के लिए, जिसको बोलते हैं J connector. जिसको क्या बोलते हैं? MySQL J connector. Okay. These drivers comes in form of jar files from database vendor. Database vendors के पास से हमें क्या मिलती है भैया? ये jar file के फॉर्म में मिलते हैं. The jar file contains concrete driver class that implements driver interface. ओके. इस क्लास के अंदर हमें क्या मिलती है? कॉन्क्रीट ड्राइवर क्लास, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं किसको? ड्राइवर को, फॉर कनेक्टिंग. एज वेल एज these jar file contains कनेक्शन की कॉन्क्रीट क्लास, कनेक्शन इंटरफेस के लिए मींस कनेक्शन इंटरफेस की कॉन्क्रीट क्लास, स्टेटमेंट इंटरफेस के लिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए एंड रिजल्ट सेट के लिए. ओके. इनके लिए क्या मिलती है आपको? कॉन्क्रीट क्लासेस. कहाँ से मिलेगी? इस पर्टिकुलर जार फाइल से, जो कि हम डाउनलोड करेंगे कहाँ से? फ्रॉम दी वेंडर. ओके. सो these are the example of some of the jar files. ड्राइवर क्लासेस हैं और सोर्सेस कहाँ से हमें मिलेंगे. ठीक है. सो दिस इज द ड्राइवर क्लास दैट इज यूज्ड टू access that JDBC ODBC bridge. This comes in already in JDK, बट ये 6 से पहले था भैया, है ना? जावा 6 से पहले. तो ये क्लास अभी भी आपको मिल जाएगी. ओके. अभी भी आपको मिल जाएगी. दिस ड्राइवर इज नॉट इन यूज. For MySQL, we will use the driver class com.mysql.jdbc.driver. ये भी जावा 5, जब जो कनेक्टर आपका 5 था वहां तक ये क्लास थी. कनेक्टर 8 के बाद ये जो लेटेस्ट कनेक्टर है, इसका जो पाथ है वो चेंज हो गया है. वो क्या हो गया है? com.mysql.cj.jdbc
dot driver. Okay, we are going to use this particular class, and for Oracle what you have to do, oracle dot jdbc dot driver dot oracle driver, it is coming from this jar file. All these jar files are coming from, कहाँ से आ रही है भैया, ये MySQL से आएगी, this is coming from MySQL, this is coming from Oracle. Okay, so Oracle से आएगी या MySQL से आएगी, जिस टाइप का ड्राइवर है वहां से मिलेगी, ठीक है। Oracle driver you have to add, okay, Oracle drivers हैं, you have to add MySQL connector jar and ODBC jar in the OJDBC jar in the class path। कहाँ ऐड करना है, क्लास पाथ, या तो हम क्लास पाथ में ऐड कर दें, अगर हम नोटपैड प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जार फाइल हमको क्लास पाथ में ऐड करनी पड़ेंगी। If you are using an IDE such as IntelliJ, Eclipse or NetBeans, you need to add these jar files into the library. Okay, library जो रहेगी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। We will discuss this step when we are doing the programming. Okay. Now, moving forward, हम क्या यूज कर रहे हैं भैया, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फाइल MySQL कनेक्टर जावा 8.0.21। दिस इज द लेटेस्ट, दिस इज द लेटेस्ट, आप कोई भी 8 पॉइंट यूज कर सकते हैं, दिस इज द लेटेस्ट। and this connector will be downloaded from, we are using the Maven, we are using the Maven repositories for using this. Okay, we are using the Maven repository and this is the download link which I am going to share with you in the chat window. Okay, मैं आपके साथ ये chat window में share कर दूंगा, so parallelly what you can do, you can download this particular file. Give me a second. So kindly download this file, kindly download the file. I have posted the link, I have posted the link in the chat window. Click on this link and you will be redirected to a download. Okay, kindly download it and save it on a reachable location, जो आप प्रोजेक्ट के दौरान जिस लोकेशन पे आप जा सकें। ओके, ठीक है। So kindly download this particular file. So we are going to use MySQL connector Java 8.0.21.jar. Okay. So सर ये हार्मफुल क्यों बता रहा है? हाँ जी, बता रहा सर दिस टाइप ऑफ फाइल में हार्म योर कंप्यूटर। तो ये तो आपके कंप्यूटर का नोटिफिकेशन है। इट्स एन एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जब इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते तो हो सकता है उसमें वायरस हो। ओके सर। ओके, इट्स एन एग्जीक्यूटेबल जावा प्रोग्राम, तो उस पर डबल क्लिक मत करना, जब हमको उसमें प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगी वी विल डिस्कस दैट। ओके, चलें। अब इस ड्राइवर को लोड करने का मतलब क्या रहेगा हमारे लिए, व्हाट इज दी वे टू लोड, टू लोड दिस ड्राइवर वी हैव टू सप्लाई द क्लास नेम टू द बिलो क्लास लोडर। अब किसका भैया, ड्राइवर क्लास नेम, सप्लाई दी ड्राइवर क्लास नेम टू द बिलो क्लास लोडर। ये जो क्लास डॉट फॉर नेम है ना, ये देखो क्लास नाम की भी एक क्लास है और इसका फॉर नेम मेथड है। ये क्या करता है, जो भी क्लास आप यहाँ सप्लाई करोगे दैट क्लास विल बी लोडेड इनटू योर प्रोग्राम, दैट क्लास विल बी लोडेड इनटू योर program. Okay, so the driver class is now loaded into your program. Okay, आफ्टर 6, जावा 6 के बाद से क्या हो गया, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो चुका है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ना लिखें, बट हम लिख रहे हैं क्योंकि इसके कुछ यूज होते हैं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि हमने क्या किया, स्टेप 1 को समझा है कि लोड दी ड्राइवर। ओके, so the com.mysql.cj.jdbc.driver is the driver implementation class for MySQL, is the driver implementation class for MySQL। मतलब इस क्लास ने, जो जावा ने ड्राइवर इंटरफेस दिया था उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट करके रखा है, उसको क्या करके रखा है, इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। ओके, तो स्टेप 1 हमारा ड्राइवर लोड हो गया। Then we have to understand the URL for connecting to an database। अब database की क्या मिलेगी आपको, एक URL मिलेगी, एक URL मिलेगी जिसके थ्रू आप उस database से connect करोगे। Before connecting to any database, you must know the URL of the database, you must know the URL of the database। The JDBC URL has a variety of formats, variety of formats। Okay, अब देखिए इसका फॉर्मेट देखिए ना, every format have three major parts in common। देखिए सबसे पहले तो होता है उसमें प्रोटोकॉल, कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। then the name of the product, then the name of the product, कौन सा प्रोडक्ट है,
पोस्टग्रेल के ऊपर एग्जाम्पल है भैया ना, पोस्टग्रेस के ऊपर एग्जाम्पल है ये मेरा, ओके। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे माई एसक्यूएल। जेडीबीसी और प्रोडक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, माई एसक्यूएल। ऑल दीज थिंग्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तीनों चीजें कैसे सेपरेटेड है, कोलन से सेपरेटेड है, नॉट बाय कॉमा। कैसे सेपरेटेड है, कोलन से सेपरेटेड है। ये तो हमारा प्रोटोकॉल हो गया, क्योंकि हम जेडीबीसी कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा MySQL, and then after the colon we'll start with double backslash. This is the local host, this is the local host, that is the server। क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट MySQL का पोर्ट नंबर है, every user has allowed 3306 reserved 3306 for MySQL, ठीक है भैया। then comes the database name, then comes the database name, okay। हमारे हमने कल के डेटाबेस का नाम क्या लिखा था, इन्फो रखा होगा या इन्फो टेस्ट इन्फो रखा होगा, तो वो डेटाबेस का नाम आएगा। सो दीज थ्री पार्ट्स आर दी बेसिक फॉर्मेशन ऑफ यूआरएल। इसके अपार्ट भी होता है, इसके अपार्ट भी क्या होता है भैया, यूटीसी देना पड़ता है। अगर आपका सिस्टम का टाइम जोन और सर्वर का टाइम जोन अलग अलग है, तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस टाइम जोन की बात कर रहे हैं, किस टाइम जोन पे ये काम कर रहे हैं। अगर हमें ये प्रॉब्लम मिलेगी तो हम यूज कर लेंगे टाइम जोन को, ओके। चलें, आई एम क्लियरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन एंड वंस अगेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूआरएल कैसी दिखेगी। स्टार्टिंग विद द प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी। देन कम्स द प्रोडक्ट नेम MySQL, देन कम्स द सर्वर आईपी दैट इज लोकल होस्ट, देन कम्स द पोर्ट नेम ऑन विच दैट पर्टिकुलर डेटाबेस इज लिसनिंग, that is 5432, then comes the name of the database। These things we have to keep in mind, these things we have to keep in mind, okay। तो ये URL हमारे लिए जरूरी है to connect to an database। Now the MySQL URL will look like JDBC MySQL hostname, port number, database name, okay। In this URL database name will change for each new database। अगर आपका प्रोडक्ट चेंज होता है तो आप सिर्फ डेटाबेस नेम चेंज करते हैं, एज इट इज रहेगा इस सर्वर के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर एज इट इज रहेगा, ओके। नाउ हमने ड्राइवर लोड कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। हमें कनेक्शन बनाने के लिए यूआरएल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, यूआरएल की जरूरत पड़ती है। टू कनेक्ट टू एनी डेटाबेस वी नीड एन यूआरएल, वी नीड एन यूआरएल, ओके। To create connection we will use connection interface and static method of driver manager class, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर क्लास का हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड यूज करेंगे। ड्राइवर मैनेजर इज आल्सो एन इंटरफेस डिफाइंड इन जेडीबीसी एपीआई। हम इस ड्राइवर मैनेजर, ये ड्राइवर मैनेजर का काम क्या होता है, द रोल ऑफ ड्राइवर मैनेजर, द रोल ऑफ ड्राइवर मैनेजर, इसका काम क्या होता है भैया, टू लोड द अप्रोप्रिएट ड्राइवर, टू लोड द अप्रोप्रिएट ड्राइवर। सर ये बताओ कि तुम किस कंसीडरेशन में पूछ रहे हो। ये जो लिंक है इसको डाउनलोड करने के लिए चाहिए मुझे इंटरनेट, और अगर आप अपने सिस्टम पे जेडीबीसी प्रोग्राम लिख रहे हैं और लोकल होस्ट ही है, आप ही के सिस्टम पे डेटाबेस है, तो इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ओके। हाँ जी बेटा, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो भैया ड्राइवर मैनेजर क्या करता है, इट विल मैनेज ऑल योर ड्राइवर्स, इट विल मैनेज ऑल योर ड्राइवर्स एंड इट विल लोड दैट पर्टिकुलर ड्राइवर, जो आपने लोड करके रखा है उस पर्टिकुलर ड्राइवर को क्या करेगा, यूज कर लेगा,
ओके। इसके पास स्टैटिक मेथड होता है भैया गेट कनेक्शन विथ URL, गेट कनेक्शन विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, गेट कनेक्शन विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड किसका होता है? डेटाबेस का। कल तो हमने देखा नहीं डेटाबेस का यूजर आईडी पासवर्ड। सो अगर यूजर आईडी पासवर्ड भी रहा तो बेसिकली क्या होता है, रूट एंड द पासवर्ड इज ब्लैंक फॉर दैट रूट, पासवर्ड इज ब्लैंक फॉर दैट पर्टिकुलर रूट। तो देखिए हम यूआरएल कैसे बिल्ड करेंगे, यूआरएल कम्स इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जावा में यूआरएल स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे प्रोटोकॉल MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट 3306 एंड द डेटाबेस नेम। ओके, नाउ व्हाट विल क्रिएट स्ट्रिंग यूजर रूट, स्ट्रिंग यूजर रूट इज द यूजर नेम फॉर डेटाबेस। ठीक है, उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए सर्वर का यूजर नेम है, डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम है, एंड दी पासवर्ड पासवर्ड। ओके, now what we'll do, we will use the connection interface, we will use the reference of connection interface and basically हम उसको हमेशा कौन से लिखते हैं, बेसिकली क्या लिखते हैं, कौन से लिखते हैं। yes, it is the default user name, it is the default user name. Okay, and the password is also default, is the password is also default, you can either create your username। देखो क्या होता है ना, कंपनी के पास डेटाबेस होता है, कंपनी के पास डेटाबेस सर्वर होता है, वो हर एक प्रोडक्ट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर देते हैं। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के लिए। आदित्य, कल जो हमने MySQL डाउनलोड किया था उससे कनेक्ट करना पड़ेगा ना, उसको कनेक्ट करने के लिए हमको बताना पड़ेगा किस सर्वर पे है। तो हमने क्या अपाचे का एक सर्वर भी डाउनलोड किया था साथ में, उस वो अपाचे का सर्वर लोकल सर्वर है, आपकी मशीन पे लोकल सर्वर है। Okay, using that local server, what we are using, we are accessing that database is hosted on that particular local server। I hope that is clear। चलें भैया, तो हम क्या करने जा रहे हैं, कनेक्शन बनाने जा रहे हैं कनेक्शन इंटरफेस को लेके। ठीक है, मतलब ड्राइवर मैनेजर का स्टैटिक मेथड गेट कनेक्शन करेंगे, ये कनेक्शन रिटर्न करता है, ये मेथड जो है ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब दैट इज एक्सेसिंग सम कॉन्क्रीट क्लास। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए था, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो हमने कहाँ से लिया भैया, ड्राइवर मैनेजर जो ड्राइवर लोड हुए थे उसमें से अप्रोप्रिएट ड्राइवर को कौन सेलेक्ट करेगा, ड्राइवर मैनेजर। और क्या करेगा, गेट कनेक्शन को कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, गेट कनेक्शन को। गेट कनेक्शन को यूआरएल सप्लाई करेगा, यूजर सप्लाई करेगा, पासवर्ड सप्लाई करेगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो सिर्फ यूआरएल सप्लाई कर देना, सिर्फ यूआरएल सप्लाई कर देना। वी आर गोइंग टू चेक इन इट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, वी आर गोइंग टू चेक इट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हम देंगे यूआरएल, यूजर और पासवर्ड। ये तीनों किस फॉर्म के हैं, गेट कनेक्शन जो इंटरफेस है मेथड है वो क्या यूज करता है, 3 वैल्यू स्ट्रिंग 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 टाइप की। देखिए स्ट्रिंग यूआरएल, स्ट्रिंग यूजर, स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, सो वी आर गोइंग टू सप्लाई दी डेटाबेस यूआरएल की कौन सा डेटाबेस और उसको एक्सेस करने के लिए यूजर और पासवर्ड क्या है, यूजर और पासवर्ड क्या है। तो हमको इससे क्या मिलता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन का रेफरेंस मिल जाता है। अब सुनिए एक और चीज जो मुझे पहले बता देनी थी, ऑल दी क्लासेस एंड इंटरफेसेस related to JDBC are defined in java.sql पैकेज। कौन से पैकेज में, याद कर लीजिएगा कौन से पैकेज में है, एमसीक्यू में पूछ लूंगा, जेडीबीसी के पैकेजेस किस, जेडीबीसी की रिलेटेड क्लास किस पैकेज में है, java.sql में। किस में है, java.sql में। एंड ऑल दीज थ्रो
SQL एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेंगे? SQL एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, SQL एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम प्रोग्रामिंग के टाइम पे बात करेंगे। मतलब ये मैं जब गेट कनेक्शन मेथड कॉल करूंगा ना, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सा? SQL एक्सेप्शन। SQL एक्सेप्शन हो सकता है इस URL पे, इस URL पे, ये जो URL आपने बनाई है ये डेटाबेस ही ना हो, ठीक है। जो माई एसक्यूएल जा रहा है वो इस पोर्ट पे ही ना हो, इस लोकल होस्ट पे माई एसक्यूएल ही ना हो। देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, और उन सारी पॉसिबिलिटीज के लिए क्या आता है आपके पास? एसक्यूएल एक्सेप्शन। उस पॉसिबिलिटी के लिए क्या आता है आपके पास? एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। चलें, कनेक्शन मिल गया। Once you get the connection, you can use the connection reference to create a statement either by using statement interface और बाय यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। या तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से बना लेंगे या स्टेटमेंट से बना लेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? A statement interface is used to create a statement that is a query to be executed against a database। अब मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेटमेंट बना रहा हूँ। स्टेटमेंट बना रहा हूँ मतलब है मैं क्या बना रहा हूँ? क्वेरी बना रहा हूँ। क्वेरी तो मैं एसक्यूएल में ही लिखूंगा, लेकिन उसको जावा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस टू कॉल्स आर मेड टू द डेटाबेस सिस्टम, once to get the table metadata and other to get the data itself, okay। इस प्रोसेस में दो कॉल जाते हैं, ठीक है। the statement object is also compiled every time it execute। अगर आपने स्टेटमेंट बनाया है तो वो हर बार कंपाइल होता है। आपने कोड एक बार कंपाइल किया, लेकिन वो एग्जीक्यूशन से पहले वो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट को हर बार कंपाइल करता है। इट्स एन हैवी वेट प्रोसेस, इट्स एन हैवी वेट प्रोसेस, ठीक है। या आपके प्रोग्राम को स्लो कर सकता है, आपके प्रोग्राम को स्लो कर सकता है। एंड व्हेन यू वांट parameterized statement, you cannot use this, you cannot use this, okay, you cannot यूज दिस। जब पैरामीटराइज स्टेटमेंट चाहिए तब भी इसको यूज नहीं कर सकते, तब भी इसको यूज नहीं कर सकते, ओके। तो हम स्टेटमेंट का रेफरेंस लेके क्या बनाएंगे? क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, क्वेरी बिल्ड करेंगे, ठीक है। और क्वेरी को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा आता है भैया आपके पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। A prepared statement comes in handy as it's compiled and cached and only makes on database call when invoked, okay। ये ई मीडिया ओनली मैक्स वन डेटाबेस कॉल व्हेन इन्वोक्ड, ठीक है भैया। क्या होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट? आपके लिए आसान है, कंपाइल्ड रहता है और कैश्ड रहता है। जो भी लास्ट एग्जीक्यूशन था, अगर लास्ट स्टेटमेंट और नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम है, एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम कंपाइल कर रहे हो, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हो फॉर लूप के अंदर से, तो क्या होता है? ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बार बार कंपाइल नहीं होता। वेयरएज जो स्टेटमेंट है वो बार बार कंपाइल होगा, जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? बार बार कंपाइल होगा। The compilation would be skipped even if the values in the where clause changes। अगर where clause की values भी change हो रही हैं तब भी compilation नहीं होता है, तब भी compilation नहीं होता है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारे लिए इजी टू यूज है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा टफ है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर एन स्टेटमेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर एन स्टेटमेंट। चलिए यहाँ देखते हैं हम एक एग्जांपल स्टेटमेंट का और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। तो भैया स्टेटमेंट का रेफरेंस नेम, स्टेटमेंट इंटरफेस है उसका रेफरेंस नेम। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं किसका? बाय यूजिंग द कनेक्शन रेफरेंस वी कॉल द स्टेटमेंट। मतलब कनेक्शन इंटरफेस में स्टेटमेंट का एक क्या है? मेथड है जो रिटर्न करेगा स्टेटमेंट। अब देखिए ये क्या है? हमारी क्वेरी। ये क्या है? हमारी क्वेरी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माय टैब वेयर नंबर इक्वल्स टू 22। इट्स एन एग्जांपल, डू नॉट वरी अबाउट दिस, इट्स एन एग्जांपल, डू नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक है। जहां नंबर 22 होगा, नंबर मतलब एक कॉलम होगा जो कि 22 होगा, ठीक है। अब नाउ सी द प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट।
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए भी हम कनेक्शन का ही रेफरेंस यूज करते हैं, कनेक्शन का ही रेफरेंस यूज करते हैं और कॉल करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉल करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माय टेबल वेयर नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसमें हम जो भी वेरिएबल वैल्यू होती है उनके लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क। इसमें कितने भी क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, जो पहला क्वेश्चन मार्क होता है वो हमेशा 1 से रिफ्लेक्ट होता है, 1 2 3 4 इनकी नंबरिंग होती है। Then what we'll use, we will use the prepared statement reference to set the values for those question marks, set the values for those question mark by using the set xxx method. Okay, it will accept two index which starts from the question mark index which starts from 1 and the value. ठीक है, this can be int, float, double, okay, string. सो इस टाइप के मेथड हैं वो हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन देखते हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दिस सेट्स द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क एज 11, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या कर रहा है 11। इफ वी रन स्टेटमेंट इन लूप एवरी टाइम, देखिए जो मैंने बताया था आपको, if we run statement in for loop every time changing the where clause, the statement is compiled every time before execution, एग्जीक्यूशन से पहले स्टेटमेंट हर बार कंपाइल होगा। In the case of prepared statement, the prepared statement is cached and compiled only one time in the event for a for loop while changing where clause। तो यह आपके सिस्टम को थोड़ा सा इफिशियंट बना देता है, थोड़ा सा इफिशियंट बना देता है। देखिए अब हमने क्या क्या काम कर लिया है, ड्राइवर, कनेक्शन, स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या है, स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया। नाउ हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हम कब देखेंगे, ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हम ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। नाउ कम्स एनालाइजिंग द रिजल्ट। हम क्या करेंगे, यूजिंग रिजल्ट सेट इंटरफेस हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसको समझने के लिए पहले हम एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, देन विल गो टू दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। अब देखो भैया, सबसे पहले हमको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है। सबसे पहले क्या करना है, माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। तो मेरे को कल की लोकेशन याद है, कहाँ इंस्टॉल किया था बेटा आप लोगों ने, मैंने कहाँ इंस्टॉल किया था, मैंने इंस्टॉल किया था एक्सएम्प में। और मैं कंट्रोल पैनल को कैसे रन करता हूँ, एज एन एडमिन। कैसे रन करता हूँ, एज एन एडमिन। चलिए, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अब इस फोल्डर की राइट नाउ तो मुझे कोई जरूरत है नहीं। क्या हो गया भैया, शो कर दो, इट्स टेकिंग टाइम, माय सिस्टम इज आई थिंक ओवरलोडेड। Okay, 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 finally. So what I'll do, first I'll do start the Apache. What first I'll do, I'll start the Apache, and then what I will do, start the MySQL। देखिए MySQL चालू होगा तो यहाँ पोर्ट नंबर दिखा आपको, क्या पोर्ट नंबर आया है, यस सर। अभी तो नहीं आया बेटा, ये तो प्रोसेस आईडी है, 5644 इज द प्रोसेस आईडी है सिस्टम के रेफरेंस में। पोर्ट नंबर अब देखिए, अब जनरेट हुआ है, स्टॉप के जस्ट सामने लिखा दिख रहा है, देखिए, that is the यस सर। default for port for MySQL 3306। चलिए ये काम कर लीजिए और PHP माई एडमिन पे चले जाइए, एडमिन पे क्लिक करके PHP माई एडमिन पे चले जाइए। तो क्या ये पेज खुलने से पहले आपसे कोई आईडी पासवर्ड मांगा है, नहीं मांगता ये नो पेज सर। खुलने से पहले कोई आईडी पासवर्ड। वेटिंग फॉर द पेज टू लोड, टाइम क्यों ले रहा है ये नहीं मालूम मुझे। ओके, इट्स स्टार्टेड, होप सो। ओके, डन।
अब देखिए इसने मुझसे कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगा। कल मैंने एक डेमो टेबल बनाया था, याद है आप लोगों को? यस डेमो सर। डेटाबेस बनाया था, उसके अंदर एक टेबल बनाया था इन्फो नाम से, या टेस्ट इन्फो से बनाया होगा। इन्फो का स्ट्रक्चर क्या था भैया? इन्फो का स्ट्रक्चर क्या था? बेटा ऑल दिस थिंग्स, और ये जो नीचे मेरे टास्क बार में है, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन जिसके कारण ये सब ओपन है, और ये तो कम है। ऊपर ये सारी चीजें भी काम की है कि मैवन आपके लिए डाउनलोड करके लाया था, वो सारी चीज 8 GB रैम है। उम्मीद है कि चल जाएगा काम इस सेशन, और अगले सेशन में लैपटॉप अपग्रेड कर लेंगे। चलें। सो गाइस, यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, आईडी है और नेम है, मेरे पास आईडी है और नेम है, और इस टेबल का नाम क्या है बेटा? इस टेबल का नाम है इन्फो। इस टेबल का नाम क्या है? इन्फो। आई नीड दी टेबल नेम। जैसे आपको मालूम है कि क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ भी चलाने के लिए टेबल नेम चाहिए रहता है। ओके, तो चलें, ये मेरा काम है इतना। मैं आप लोगों के पास डेमो टेबल, डेमो डेटाबेस है कि कौन सा डेटाबेस है, ये बताइए आप। सर डेमो ही है। डेमो है और टेबल का नाम इन्फो है। चेक यस सर। करिए, चेक, ओके चले, है ना। अब इंटेलिजे ओपन करते हैं। अब इंटेलिजे ओपन करते हैं। इंटेलिजे में एक प्रोजेक्ट मैंने खोल के रखा हुआ है। ड्राइवर भैया तुम चले जाओ, एग्जिट हो जाओ तुम, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। चलें, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का कोड हमें हेल्प करेगा ये क्वेरीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने को, बस, है ना। ठीक है, चलें। 2GJDBC डेमो। ओके, चलें भैया। अभी तो हम मेन फंक्शन में लिखेंगे सारा कोड। कहाँ लिखेंगे? मेन फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ओके, सारा कोड लिखेंगे मेन फंक्शन में। टाइम लेगा भैया, टाइम इसलिए लेगा क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये जेडी के 12 पे है, ओपन जेडी के, और ये वाला है जेडी के 11 पे, ठीक है, इसलिए चलें। ओके, ओके, जेडीबीसी डेमो ही लिख दिया क्लास का नाम मैंने, ठीक है भैया। क्या करने वाले हैं भैया? ट्राइंग टू कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है, ट्राइंग टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन पॉइंट है, तो मेन फंक्शन बना लेते हैं एक। चलिए, देखिए अब हमको हमको करना क्या है, हमको 5 स्टेप फॉलो करने हैं ना। स्टेप 1 हम कमेंट में लिख लेते हैं, इनको हम कमेंट में लिख लेते हैं, ठीक है। ऋषभ, आई डोंट नो, है ना। आई रियली, जो तुमने यहाँ लिखा है, आई डोंट नो। The blue screen error is due to the operating system और some hardware failure। कुछ हार्डवेयर आपका होगा जो सिस्टम का सही से नहीं चल रहा होगा, है ना, ठीक है। एक बात बताऊं, मैं इस कंप्यूटर पे गेम नहीं खेलता हूँ, इवेंचुअली मैं गेम खेलता ही नहीं हूँ। एक गेम खेलता हूँ, चेस। ओके, ठीक है। सो उसमें इतना कोई ग्राफिक्स यूजर होता नहीं, और दैट टू ऑन माय मोबाइल फोन। चलें आगे बात करते हैं भैया। स्टेप 1, टाइम कम है, ये सारी बात अपन बाद में करेंगे किसी दिन। अपन एक जो कपाट का सेशन रख लेंगे, उसमें ना वो करेंगे कि यही बात करेंगे। हमें कितने स्टेप फॉलो करने भी है यहाँ पे? स्टेप 4, 5 स्टेप लिखाए थे, कितने लिखाए थे? चलिए, 5 स्टेप फॉलो करने। स्टेप 1 क्या था? लोड दी ड्राइवर, ठीक है, यही था स्टेप 1। तो क्या बोला हमने, कैसे लोड करना है? क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग क्लास नेम, ठीक है। कॉम डॉट, मुझे याद है इसलिए ना, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट, ऐसे ही था ना कुछ भैया, सीजे डॉट, नहीं तो पीपीटी में देख लेंगे ना, जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ठीक है। ओके,
क्लास डॉट फॉर नेम बोल रहा है एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा बताओ मुझे। यहाँ लिखा आ रहा है क्लास नॉट फाउंड, हो सकता है क्लास नहीं मिले, तो मुझे इस स्टेटमेंट को काय में लिखना चाहिए, काय में लिखना चाहिए, ट्राई। तो जितने भी स्टेप है सब ट्राई ब्लॉक के अंदर आने वाले हैं, तो मैंने ट्राई लिखा और स्टेप 5 के बाद सॉरी क्लास वापिस आ गए भैया, है ना। तो दूसरा काम क्या है, क्रिएट दी कनेक्शन। देखिए अभी तक बताओ इंपोर्ट स्टेटमेंट कुछ आया है क्या, इंपोर्ट स्टेटमेंट कोई आया है, हमने पैकेज भी नहीं लिया, इंपोर्ट भी नहीं आया। अब हम देखना क्या यूज कर रहे हैं, कनेक्शन। ठीक है, कहाँ से आने वाले दिख रहे हैं आपको, जावा डॉट एसक्यूएल से। ऊपर देखिएगा जब मैं डबल क्लिक करूंगा, मैंने कनेक्शन यूज किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गया मेरे पास, इंपोर्ट स्टेटमेंट मेरे पास आ गया। ठीक है, ओके डन। कनेक्शन, कनेक्शन के रेफरेंस को हम हमेशा कौन लिखते हैं, आप कनेक्शन भी लिख सकते हैं। कनेक्शन मिलेगा किससे, एक और क्लास है ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, हम ये सारे हमारे लिए इंटरफेस के रेफरेंस है। ड्राइवर मैनेजर, ये देखिए दूसरा इंपोर्ट स्टेटमेंट देखिए कौन कौन सा इंपोर्ट हुआ, कनेक्शन हुआ, ड्राइवर मैनेजर हुआ। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन ये यूआरएल मांग रहा है मुझसे। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग यूआरएल चाहिए, स्ट्रिंग यूआरएल, आई नीड एन स्ट्रिंग यूआरएल। यूआरएल मैंने क्या बताई थी भैया, JDBC कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर क्या था 3306 स्लैश डेटाबेस का नाम कोई बताए मुझे, डेमो। ठीक है भैया, यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास है नहीं, यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो इसको अभी हम इनको हम बना लेते हैं, स्ट्रिंग कंट्रोल Z स्ट्रिंग यूजर इक्वल्स टू डबल कोट्स ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू डबल कोट्स ब्लैंक छोड़ दिया भैया। ठीक है, यूजर में मैं चाहूं तो रूट डाल सकता हूं, क्या डाल सकता हूं, रूट। लेकिन अभी मैं बिगर इसके ट्राई करूंगा, अगर मेरा कनेक्शन नहीं बिल्ड होता है देन आई विल चेक। तो भैया यहाँ क्या चाहिए मुझे, एक यूआरएल चाहिए, एक यूजर चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए। ठीक है, अब ये गेट कनेक्शन भी थ्रो करता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। सी एसक्यूएल ऐड एसक्यूएल एक्सेप्शन टू कैच विथ क्लॉज। देखिए या तो हम एसक्यूएल को ऐड कर सकते हैं या हम क्लास नॉट फाउंड के बाद एक और कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, कैच एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, ई काम सेम कराना है, एस आउट ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, अभी तो हम गेट मैसेज ही करा रहे हैं। चलिए ये क्या बन गया हमारा, कनेक्शन। कनेक्शन बनने के बाद हम क्या करते थे, प्रिपेयर स्टेटमेंट। पहले हम स्टेटमेंट का रेफरेंस यूज करेंगे, तो हमने यूज किया स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट यूज किया, STMT। देखिए जनरल नेमिंग कन्वेंशन STME ही लिखा दिखेगा, स्टेटमेंट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा कनेक्शन का रेफरेंस लूंगा, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, ठीक है भैया, ओके। ये मैंने क्या किया, स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया। अब स्टेटमेंट को एक एसक्यूएल चाहिए है, एसक्यूएल का फॉर्म होता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग SQL। ठीक है, एसक्यूएल की जगह मैं इसको लिखूंगा क्वेरी। ठीक है, क्वेरी।
अब भैया ये क्वेरी मैं कॉपी करूंगा, ये क्वेरी मैं कॉपी करूंगा, कहाँ से कॉपी करूंगा, मैं PHP माई एडमिन से कॉपी करूंगा। ठीक है, इंसर्ट पे जाऊंगा, 2 वैल्यू डालूंगा, यहाँ डालूंगा 12, यहाँ डालूंगा ABC। ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन गो, आई विल क्लिक ऑन गो। जैसे ही मैं गो करूंगा मुझे ये इंसर्ट की क्वेरी लिख के देगा खुद। ठीक है, Ctrl+C। चलिए ये मेरी क्वेरी आ गई भैया, इंसर्ट इनटू इन्फो। ये सिंगल कोट्स को मैं हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। आईडी, नेम, वैल्यूज। ठीक है भैया, इन वैल्यूज को भी मैं हटाऊंगा, सेमी कॉलन लगे रहने दीजिएगा अंदर। इन वैल्यूज को भी मैं चेंज करूंगा, इसको मैं करूंगा 112 और इसको करूंगा दीवान। कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो भी रही है कि नहीं, क्वेरी एग्जीक्यूट हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, ओके, ये मेरी क्वेरी बन गई भैया। ठीक है, क्वेरी बना ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है भैया, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट है मेरे पास। एग्जीक्यूट के साथ मेरे पास एग्जीक्यूट एक तो दे रहा है मुझे, इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर दूं। ठीक है, एक होता है, रुकिए, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, स्टेटमेंट डॉट, ओके, एग्जीक्यूट स्ट्रिंग क्वेरी। ठीक है, यहां देखिएगा हमारे को ये 2 मेथड समझने हैं, एक तो एग्जीक्यूट क्वेरी और एक एग्जीक्यूट अपडेट। तो जो किस टाइप की क्वेरी है जो अपडेट से फॉलो होंगी, पहले तो यहाँ देख लेता हूं मैं। मैंने बोला क्वेरी, ठीक है भैया, डन। मतलब इंसर्ट, ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया मैंने तुम्हारा, ले लिया है। तो क्लास एक काम करते हैं, यहीं एंड करते हैं, इसके आगे का कोड कल कंटिन्यू करेंगे ना। सॉरी क्लास, थैंक यू, मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। सर।